اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نیکسٹ ٹاپک از اباؤٹ نیموتھوریکس. ٹھیک ہے جی. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا پلورل افیوژن کے بارے میں. پھر ہم نے اس کے ٹائپس پڑھے تھے، ٹرانسوڈیٹیو ٹائپ ورسز ایکسوڈیٹیو ٹائپ. آج ہم نیکسٹ پڑھیں گے پلورل افیوژن کے بعد. نیکسٹ ٹاپک از نیموتھوریکس. نیموتھوریکس. نیومو از دا ورڈ یوز فار ایئر، مطلب ایئر کو کہتے ہیں نیومو. ٹھیک ہے. تو کلیکشن آف ایئر ان دا پلورل کیویٹی دیٹ لیڈنگ ٹو لنگ کولیپس. کلیکشن آف ایئر in the pleural space یا pleural cavity that leading to lungs collapse is known as pneumothorax. اگر پلورل کیویٹی کے اندر فلوئڈ اکومولیٹ ہو جائے وہ پلورل افیوژن ہے. لیکن سیم کیویٹی میں اگر ایکسس میں کیا چیز آ جائے، ایئر آ جائے، اس کو نیموتھوریکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وی ہیو ٹو لنگس ان دا thoracic cavity لیفٹ اینڈ رائٹ. فار ایگزامپل یہ دو لنگس ہیں. ٹھیک ہے جی، لیفٹ اینڈ رائٹ. اب اس لنگس کے باہر ایک کیویٹی ہوتی ہے. کل ہم نے بات کی تھی دا لیئر وچ سراؤنڈنگ دا لنگس اس کال ویسرل لیئر، اور اس سے باہر والا جو لیئر ہے دیٹ از کال پیرائٹل لیئر یا پیرائٹل پلورا. ویسرل پلورا اور پیرائٹل پلورا، اس کے درمیان جو اسپیس ہوتا ہے دیٹ از کالڈ پلورل اسپیس، یا اس کو ہم کہتے ہیں پلورل کیویٹی. اس کے اندر اگر ایکسس ایئر آ جائے دا کنڈیشن ول بی نون ایز نیوموتھوریکس. اب یہاں پہ دیکھیں، اگر میں آپ لوگوں کو مثال دے دوں، یہ ایئر ہے تو یہ ایئر اس لنگ کو باہر سے کمپریس کرے گا کہ نہیں؟ اور جب لنگ کمپریس ہوں گے تو لنگس کولیپس ہونے کے چانسز ہوں گے. اگر لنگس کولیپس رہیں گے تو اس میں ایکسچینج ہوگی؟ نو. اس میں آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسچینج نہیں ہو پائے گی. تو پھر بندے کو شارٹنیس آف بریتھ، ڈیفیکلٹی ان بریدنگ، اس کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو کلیکشن آف ایئر جب بھی آ جائے ان سائڈ دا لنگس کیویٹی دیٹ شوڈ بی نیموتھوریکس. نیموتھوریکس کے پھر ٹائپس ہے. ٹھیک ہے. اس کے لئے ٹائپس کہ what are the types of pneumothorax. ٹائپس میں سب سے پہلے دیکھیں پرائمری نیموتھوریکس. ٹھیک ہے. پرائمری نیموتھوریکس. تو کلیکشن آف ایئر in pleural cavity which is not due to underlying lungs disease. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار پہلے سے ایک لنگ ڈیزیز کی ہسٹری ہوتی ہے. لنگ ڈیزیز میں کون کون سی آتی ہے؟ سی او پی ڈی، برونکائٹس آتا ہے، برونکی ایکسیسس آتا ہے، نیمونیا آتا ہے. اگر پہلے سے کسی بندے کو ایک لنگ ڈیزیز ہو اور اس کی وجہ سے اس کو کیا ہو جائے، نیموتھوریکس، وہ سیکنڈری نیموتھوریکس ہوتا ہے. کبھی کبھار لنگ میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، دیر از نو لنگ ڈیزیز، لیکن ان لوگوں میں بھی کیا ہوتا ہے، نیموتھوریکس. دیٹ ول بی نون ایز پرائمری نیموتھوریکس. اس کا مطلب ایک بندہ ہے، اس کی ہیلدی لنگس ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں کئی اور کا مسئلہ ہے، کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈر ہے، مارفن سنڈروم ہے. مارفن سنڈروم از اے کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈر بٹ دیٹ سنڈروم از ناٹ اے لنگ ڈیزیز. وہ لنگ ڈیزیز نہیں ہے، لیکن مارفن سنڈروم کے اندر اگر نیموتھوریکس ہو جائے تو وہ کون سا ہوگا؟ پرائمری نیموتھوریکس ہوگا. یہاں پہ لے کے اٹ از یوزولی عموماً طور پر یوزولی سین ان مارفن سنڈروم. یہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ مارفن سنڈروم کے اندر ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ مارفن سنڈروم لوگوں میں اس طرح کا نیموتھوریکس چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب ان لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ مارفن سنڈروم، کنیکٹیو ٹیشو
डिसऑर्डर है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। और अगर ये एमसीक्यूज आ जाए, मार्फन सिंड्रोम के अंदर देयर इज क्रोमोसोम 15 डिफेक्ट। कौन सा क्रोमोसोम का डिफेक्ट होता है? 15। क्रोमोसोम 15 के ऊपर मसला होता है एक जीन का, द जीन इज कॉल्ड फेब्रिलिन जीन। कौन सा जीन? फेब्रिलिन जीन डिफेक्ट होता है मार्फन सिंड्रोम। इसका मतलब कि मार्फन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर having fibrillin gene defect on chromosome 15 and it is one of the connective tissue disorder, जिसके कुछ फीचर है। इसमें जो लोग हैं वो थिन रहेंगे, having शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज के लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज, लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज। इसका मतलब ये है कि इन लोगों की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये बहुत टाल होते हैं, टालर लोग होते हैं, हाइट में ज़्यादा होते हैं, थिन होते हैं, इन लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और हैविंग लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज, इसके हाथ और पाँव की जो लेंथ है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोग क्या होते हैं? वो ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज होती है, ठीक है। अब ये देखिए एक क्वेश्चन आता है, अगर एक बंदा है वो लॉन्ग मतलब शॉर्ट हाइट नहीं है, वो लॉन्ग हाइट है, हाइटेड बंदा है, जितना उसकी हाइट ज़्यादा है उतना उसकी लंग्स इस तरह स्ट्रिच ज़्यादा होगी। अगर इसकी लंग्स ज़्यादा स्ट्रिच होगी उसमें वेस्ट्रल प्लूरा की टीयरिंग चांसेस क्या होती है? ज़्यादा। और अगर ये वेस्ट्रल प्लूरा टीयर हो जाए तो फिर इस लंग से एयर की एस्केपिंग होगी कि नहीं, और अगर ये एयर बाहर निकले तो ये किस स्पेस के अंदर आ जाएगी? प्लूरल स्पेस। इसलिए मार्फन सिंड्रोम पीपल हैज मोर प्रोन फॉर स्पॉन्टेनियस प्राइमरी निमोथोरेक्स। क्लियर है? ये क्वेश्चन याद रखें। फिर लिखे सेकेंडरी निमोथोरेक्स। कि सेकेंडरी निमोथोरेक्स का मतलब क्या है? ये तो आसान हो गया ना, कि ऐसा निमोथोरेक्स जिसके पीछे अंडरलाइन कोई लंग पैथोलॉजी हो, इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी निमोथोरेक्स। तो अनीमोथोरेक्स which is due to underlying lung disease is called a secondary pneumothorax. For example, COPD, इसमें emphysema आ सकता है, pneumonia, so these are known as a lung diseases. अगर पहले से किसी बंदे में कोई लंग डिजीज हो उस वजह से नीमोथोरेक्स हो जाए, दैट विल बी सेकेंडरी नीमोथोरेक्स। क्लियर है जी? पब्लिक केस, इधर एक जनाब क्लिनिकल केस आता है पेपर के अंदर, वो आप लोगों को कॉपी पे बताना चाहता हूँ। इस क्लिनिकल केस किस तरह आता है तो लेके अ यंग टाल लीन एंड थिन मेल, अ यंग tall, lean and thin young male while playing the sport suddenly develop acute chest pain, shortness of breath, dyspnea, sudden onset acute chest pain, shortness of breath, dyspnea and percussion जानते हो ना? परकशन शोज। अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये वर्ड याद रखें, हाइपर रेजोनेंस नोट। इसके अंदर क्या आता है? हाइपर रेजोनेंस नोट। हाइपर रेजोनेंस नोट most likely diagnosis, हाँ जी, हाइपर रेजोनेंस नोट मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ऑलवेज थिंक अबाउट नीमोथोरेक्स।
ये क्या होता है, नीमोथोरेक्स। पेपर के अंदर फ्रेंकली स्पीकिंग ये कभी नहीं होता कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, बस वहाँ पे जो भी नीमोथोरेक्स हो, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टेंशन नीमोथोरेक्स हो, बस आप लोगों ने नीमोथोरेक्स लिखना है, क्योंकि दिस इज गिविंग अ हिस्ट्री ऑफ मार्फन सिंड्रोम, कि भाई लीन एंड थिंग यंग बंदा है टाल, और इसके अंदर जनाब वो स्पोर्ट्स खेल रहा था, स्पोर्ट्स के दौरान उसको सडन ऑनसेट एक्यूट चेस्ट पेन हुआ है विद डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, लेकिन लेटर ऑन परकशन देयर इज हाइपर रेजोनेंस नोट। जब भी ये आ जाए दैट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑफ नीमोथोरेक्स, तो ये नीमोथोरेक्स होता है। नीमोथोरेक्स इज अ इमरजेंसी, ये क्या होता है, इमरजेंसी। अगर ये एयर हम निकाल ना सके तो दिस एयर विल कंप्रेस द लंग्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड इट कैन लीड टू लंग्स कोलैप्स, और अगर लंग्स कोलैप्स हो जाए तो फिर एयर एक्सचेंज नहीं होगा, तो देयर इज अ हाई चांस ऑफ डेथ, फिर इसके अंदर डेथ के चांसेस ऑफ ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो ये जनाब फॉर एग्जांपल मैंने जो पॉइंट आप लोगों को बताया था ये वाला, दिस इज द क्वेश्चन दे आस्क इन द एग्जाम मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है जी, यहाँ पे अब आप लोगों को लेके डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, नीमोथोरेक्स की इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर द नीमोथोरेक्स, इन्वेस्टिगेशन लेके, इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस लेके, डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस के लिए परकशन करना जरूरी है कि नहीं, तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस में हम इनिशियली इन द क्लिनिक सेटअप वी विल डू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज परकशन। परकशन के लिए कोई टेस्ट नहीं करते, ये बस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चेस्ट पे एक उंगली रखते हैं और दूसरे उंगली पे मारते हैं, तो परकशन पे हमें कौन सा नोट मिलेगा, हाइपर रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस नोट, ये याद रखें, दैट इज द डायग्नोस्टिक ऑफ नीमोथोरेक्स। दूसरी बात, नीमोथोरेक्स के अंदर द नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टूल वी शुड डू फॉर दैट अनफ्रेश चेस्ट एक्सरे, हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे, हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे। हाँ जी, इसमें एयर अकोमुलेट है कि फ्लूइड है, एयर, और एक्सरे के ऊपर एयर लुक लाइक ब्लैक, ब्लैक। ठीक है, तो लेके टोटली ब्लैक शेडो इन द लंग्स ऑन अफेक्टेड साइड, टोटली blackish shadow on the affected side। हाँ जी, with what, lungs collapse, उस साइड पे लंग्स क्या रहेंगे, कोलैप्स देखेंगे, मतलब लंग्स की जो डायमीटर है वो क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा, क्योंकि अगर लंग्स के इर्द गिर्द बाहर एयर आ जाए तो उस साइड पे लंग्स कंप्रेशन की वजह से उस साइड का लंग क्या होंगे, इसको लंग्स रिट्रैक्शन भी कहते हैं, द लंग्स बिकम रिट्रैक्टेड और लंग्स बिकम कोलैप्स। जी बिल्कुल वही ब्लैक होते हैं, लेकिन इसमें मार्किंग होती है, हेजीनेस मार्किंग होती है। ठीक है, आप लोग अभी ग्रुप में हो कि नहीं, ग्रुप कॉल है, थोड़ा सा जना इसको आइडेंटिफाई करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ऑनलाइन वाले भी सुन ले और आप लोगों को भी। इसमें हमारे पास बहुत से एक्सरे है, लेकिन वो हम प्रैक्टिकली स्टेप 3 में पढ़ाते हैं फिर। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे इसमें डिफरेंसेस का बोल रहा हूँ कि नॉर्मली जो लंग्स है उसकी एक्सरे में और जो नीमोथोरेक्स का एक्सरे है उसकी एक्सरे में हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंस होनी चाहिए, तो इसमें बहुत आसान है, देखे एक मिनट। हाँ, ये आप लोग भी देखे और ये जनाब फिर बाद में जो ऑनलाइन के लोग सुन रहे हैं वो भी देख ले। ठीक है, कि व्हाट इज द नॉर्मल एक्सरे विच लुक लाइक विच लुक लाइक ब्लैक, और नीमोथोरेक्स के अंदर भी एयर अकोमोडेशन है, उसमें भी जनाब हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ब्लैकिश नजर आएगी, तो फिर उसमें और इस नीमोथोरेक्स के अंदर हमारे पास एक्सरे का क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। एक क्लियर कट डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा, एक मिनट। ठीक है, ओके जी, अब ग्रुप में आ जाए, ग्रुप में देखे फैमिली,
ओके, सबसे पहले वाले एक्सरे को देखे, दैट इज नॉर्मल वन। ठीक है जी, ये नॉर्मल एक्सरे है, मिल गया है। हाँ, एक्सरे मिल गई है, दैट इज नॉर्मल। इसमें लंग्स अब देखे अंदर से ब्लैक नजर तो आते हैं, लेकिन इसके ऊपर इस तरह व्हाइट शेड ऑफ है लाइनिंग है कि नहीं, इसको ब्रोंकोवास्कुलर लाइनिंग कहते हैं, मतलब नॉर्मल लंग्स लाइनिंग इसको कहते हैं। मतलब ब्लैक भी है लेकिन और दरमियान में हार्ट है। क्या है? हार्ट। लेफ्ट साइड पे 2/3 है और राइट साइड पे 1/3 है। ये जो शेडो बन रही ना, ये वाला इधर देखे, दिस शेडो इज द हार्ट, ये हार्ट है। अगर ये 2/3 हार्ट उस साइड पे था, लेफ्ट इधर पे, तो डेक्स्ट्रोकार्डिया का पेशेंट होता है। कौन सा? डेक्स्ट्रोकार्डिया। लेकिन इस एक्सरे में लंग्स तो ब्लैक है, लेकिन ये लाइनिंग नजर आती है कि नहीं रिब्स के ऊपर, ये नॉर्मल लंग लाइनिंग होती, ये मौजूद होता है। लेकिन इसके बाद इस एक्सरे को देखे, इसमें क्या फर्क है उस एक्सरे में और इसमें, जो सेकंड मिली है, सेकंड एक्सरे को देखे ना, जो लेफ्ट साइड राइट साइड का लंग है देखे, ये बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैक है। इसमें वो अब लाइनिंग की अपीयरेंस क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। तो एनी एक्सरे फाइंडिंग विच इज द लंग लुक ब्लैक विद लाइन, दैट विल बी नॉर्मल। लेकिन इसमें जो लंग्स की लाइनिंग है वो क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। एंड द लंग्स इज लुक लाइक कार्बन ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक नजर आता है, दैट इज कॉल्ड नीमोथोरेक्स। इसको हम फिर नीमोथोरेक्स कहते हैं। तो नीमोथोरेक्स के अंदर लंग्स की जो डायमीटर है वो भी क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। बात समझ आ गई कि नहीं? क्लियर है? तो ये जनाब पॉइंट्स आप लोगों ने याद। इधर देखे, ये नीमोथोरेक्स वाला साइड जो है, इसके बिल्कुल एंड में ये वाला एरिया, ये डायफ्राम है। ये क्या है? ये लास्ट में डायफ्राम, और ये रिब्स है ना, तो रिब्स और डायफ्राम के दरमियान ये एंगल है कोस्टोफ्रेनिक एंगल। यहाँ पे फ्लूइड अकुमुलेट होते हैं। कल हमने बताया था ना कि प्लूरल इफ्यूजन के अंदर फ्लूइड नीचे आती है, नीमोथोरेक्स के अंदर एयर ऊपर जाती है। तो अपर पार्ट ऑफ द लंग्स इज अफेक्टेड इन नीमोथोरेक्स एंड लोअर बेस ऑफ द लंग इज अफेक्टेड इन द प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल इफ्यूजन के अंदर कोस्टोफ्रेनिक एंगल क्या हो जाता है? वो ब्लंट हो जाता है। इसमें क्लियर है ना, उसमें पूरा एंगल नजर आता है। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लूइड आकर जमा हो जाए, जो कल हमने डिस्कस किया था, तो वही एरिया फिर हमें नजर सही नहीं आएगा। तो अब ये फ्लूइड का इशू है, इधर के एयर का इशू है, ये एयर का इशू है। तो दिस इज अ क्लिनिकल केस ऑफ नीमोथोरेक्स। अब समझ आ गई कि नहीं? तो प्लूरल लाइनिंग, इसके अंदर जो लंग्स की लाइनिंग है वो क्या हो जाती है? वो खत्म हो जाती है। ट्रीटमेंट देखे, व्हाट इज ये जनाब, इसके हमारे पास क्या है? डायग्नोस्टिक टूल है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर नीमोथोरेक्स? हम नीमोथोरेक्स पेशेंट में कौन सा ट्रीट करते हैं? इसको हम कहते हैं नीडल डीकम्प्रेशन ट्रीटमेंट। नीडल डी कंप्रेशन, इसका मतलब हम नीडल पास करते हैं, इंसर्ट करते हैं और एक्सेस एयर बाहर निकालते हैं। जिस तरह एक्सेस फ्लूइड कल हम निकालते थे थोरेको सिंथेसिस, इसी तरह एक्सेस एयर भी हम बाहर निकालते हैं। और अगर एयर हम निकाले तो जो कंप्रेशन इफेक्ट है लंग के ऊपर, वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो द लंग बिकम डीकम्प्रेस, इसलिए उसको हम नीडल डीकम्प्रेशन कहते हैं। इधर देखिए, आप लोग खुद बताएं, अगर ये लंग है और लंग के बाहर ये बहुत ज्यादा क्या अकोमुलेट हुआ है? एयर। तो दिस एयर कैन क्रिएट प्रेशर ऑन दी लंग्स। तो ये लंग्स को अंदर की तरफ चेंज कर, ये इसको कोलेप्स करेगा कि नहीं? तो लंग बिकम कोलेप्स, लंग्स अंडरगो प्रेशर, लंग्स बिकम कंप्रेस। लेकिन अगर इस एयर को हम बाहर निकालेंगे तो लंग कंप्रेशन रहेगी कि डीकम्प्रेस हो जाएंगे? डीकम्प्रेस। और फिर इसके अंदर जो एयर जो है ना एक्सचेंज है वो अच्छा हो जाएगा और सिम्टम कम हो जाएंगे। तो लंग डीकम्प्रेशन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द नीमोथोरेक्स। हम नीडल ऊपर डालेंगे रिब्स में कि नीचे डालेंगे? हाँ जी, नीचे अगर डालेंगे तो ये फ्लूइड है या एयर है? एयर है, तो ऊपर डालेंगे। ये कौन सा बोन है यहाँ पे? व्हाट इज दिस बोन? इट इज कॉल्ड क्लेविकल। इसको क्या कहते हैं? क्लेविकल। इस क्लेविकल का एक सर स्टर्नम के साथ है और एक स्केपुला के साथ है। इस क्लेविकल का मिड कौन सा है? ये वाला। इसका मतलब हम मिड ऑफ द क्लेविकल के नीचे लाते हैं, सर मिड ऑफ द क्लेविकल। इस एरिया को हम एक्सिला कहते हैं। ये मिड एक्सिलरी लाइन है और ये मिड क्लेविकुलर लाइन है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मिड क्लेविकुलर लाइन। और कौन से इंटरकोस्टल स्पेस? इंटरकोस्टल स्पेस इज द स्पेस बिटवीन रिब्स, मतलब सेकंड रिब्स। इधर देखे, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिखे, मिड क्लेविकुलर लाइन, clavicular line in the second intercostal space. This is the area where we can put the needle for decompression. सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस इसलिए कि ये लंग्स का ऊपर वाला हिस्सा है और एयर ग्रेविटी की वजह से वो किधर जाता है? ऊपर जाती है।
अफेक्ट अपर पार्ट ऑफ द लंग्स, ये पॉइंट याद रखें। तो इन लोगों ने कहा कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविकुलर लाइन, वहां पे हम नीडल डी कंप्रेशन करते हैं। मुझे ये बताया कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है उसको नीमोथोरेक्स है, तो एयर की वजह से उसकी लंग्स बाहर से क्या हो चुके हैं, कंप्रेस हो चुके हैं, तो उसमें एयर एक्सचेंज सही नहीं हो पा रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो हम बाहर से उस बंदे को अगर मास्क के जरिए क्या प्रोवाइड करें, ऑक्सीजन, इट कैन प्रूव हेल्पफुल, ये क्या होता है, हेल्पफुल। तो निकले के सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इज आल्सो हेल्पफुल फ्रॉम द आउटसाइड, कि हम ऑक्सीजन की सप्लीमेंट करेंगे, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इज आल्सो हेल्पफुल, ठीक है, इज आल्सो हेल्पफुल। बाहर से हम ऑक्सीजन देते हैं नीमोथोरेक्स पर्सन में, तो बंदे की सिम्टम क्या हो सकती है, वो कम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर लार्ज नीमोथोरेक्स है, शाबाश लार्ज, फिर नीडल डीकम्प्रेशन से काम नहीं चलेगा, हम नीडल डीकम्प्रेशन भी करेंगे अर्ली, लेकिन फिर उस बंदे को प्रॉपर ड्रेन डालेंगे, क्या डालेंगे, ड्रेन, और नीचे ट्यूब डालेंगे, एक ट्यूब रखेंगे ताकि वो एयर उसमें आता रहे। तो देखिए फॉर लार्ज नीमोथोरेक्स इट रिक्वायर चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट फॉर लार्ज नीमोथोरेक्स। लार्ज मीन अगर ज्यादा एयर अकोमुलेट है, तो ये जनाब बार बार तो हम थोरेकोसिंथेसिस नहीं करेंगे, तो हम एक होल क्रिएट करते हैं और उसमें एक ट्यूब डालते हैं, चेस्ट ट्यूब, और नीचे बेड के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। फॉर लार्ज नीमोथोरेक्स देयर विल बी चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट हम करते हैं, चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, तो दैट इज डन फॉर दी नीमोथोरेक्स, ठीक है जी। ओके, परकशन में आप लोगों ने दो तीन चीजें याद रखनी है, इधर देखे परकशन नोट, हेडिंग दे दे परकशन नोट। अब देखिए यहाँ पे लेके अगर नोट जो है ना रेजोनेंस आ जाए, क्या चीज आ जाए, रेजोनेंस नोट, अगर पेपर में आ जाए कि कभी कभार एक और क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए, एवरी क्वेश्चन इन द एग्जाम इज नॉट पैथोलॉजी, ये क्वेश्चन याद रखें। कभी कभार वो एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं नॉर्मल, लेकिन लोग उसको डिजीज बनाते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि एक बंदा है उसने 5-6 किलोमीटर दौड़ लगाई है, उसके बाद उसको शार्टनेस ऑफ ब्रेथ हुआ है, ये नॉर्मल है कि नॉर्मल है, नॉर्मल है। 5-6 किलोमीटर आप दौड़े तो आपको तो शार्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा, डिस्पनिया भी होगा। अगर उसकी परकशन में कौन से नोट आ जाए, रेजोनेंस नोट, आंसर इज नॉर्मल लंग्स, ये नॉर्मल लंग्स है। तो नॉर्मल लंग के लिए परकशन क्या होना चाहिए, रेजोनेंस नोट का होना चाहिए। रेजोनेंस वैसे नॉर्मली लंग्स के अंदर क्या होता है, एयर होता है ना, तो नॉर्मली एयर ऑन परकशन विल गिव राइज टू रेजोनेंस नोट, वो रेजोनेंस नोट देता है। लेकिन अगर ये रेजोनेंस नोट ज्यादा बढ़ जाए, हाइपर रेजोनेंस हो जाए, तो एयर अकोमुलेशन अब नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, हाँ जी। वैसे बात मैंने क्या कही कि इनसाइड और लंग्स नॉर्मली देयर इज एयर, और एयर जहां पे भी होता है वो परकशन पे कौन सा नोट देता है, रेजोनेंस नोट। लेकिन अगर वो एयर बहुत ज्यादा हो जाए, हाइपर रेजोनेंस हो जाए, इट विल बी एबनॉर्मल एंड दैट इज नोन एज नीमोथोरेक्स, इसको हम क्या कहते हैं, नीमोथोरेक्स। तो इसलिए नीमोथोरेक्स के अंदर कौन सा नोट आता है परकशन पे, हाइपर रेजोनेंस नोट आता है। अगर डलनेस आ जाए, डलनेस ऑफ द नोट, डलनेस, डलनेस नोट आ जाए, डलनेस, तो ये मोस्ट लाइकली हम ये सोचते हैं कि जनाब लंग्स में फॉर एग्जांपल किस चीज की शिकायत है, निमोनिया, क्या चीज है, निमोनिया, निमोनिया है, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग सेल, इट इज कॉल्ड ऑफ निमोनिया। अगर लंग्स की सेल की इन्फ्लेमेशन हो जाए इसको निमोनिया कहते हैं, और वो परकशन पे क्या दिखता है, डलनेस ऑफ द नोट। लेकिन अगर ये डलनेस स्टोनी डलनेस बन जाए, स्टोनी डलनेस, स्टोनी डलनेस अगर आ जाए पेपर में, तो स्टोनी डलनेस का मतलब ये है कि अब लंग्स के इर्द गिर्द बाहर फ्लूइड है, तो दैट इज प्लूरल इफ्यूजन, वो प्लूरल इफ्यूजन है, ठीक है जी। तो दैट इज द डायग्नोस्टिक ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, दैट इज द डायग्नोस्टिक ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आस्क्ड इन द एग्जाम। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अगर एक फीमेल है, इधर देखे, हाँ ये क्वेश्चन नोट में लेके, a female having classic triad which is
प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन। नंबर 2, ओवेरियन कैंसर, कैंसर ऑफ ओवरी, ओवरी इज ओनली प्रेजेंट इन फीमेल, ठीक है, ओवेरियन कैंसर। एंड एसाइटस, व्हाट इज एसाइटस? इट इज अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन, मतलब पेट के अंदर पानी, इसको हम कहते हैं एसाइटस। दैट इज या एडीम ऑफ द एब्डोमेन, दैट इज कॉल्ड ऑफ एसाइटस। तो एडीमा ऑफ एब्डोमेन, इसको हम एसाइटस कहते हैं, एडीमा ऑफ एब्डोमेन, दैट इज कॉल्ड ऑफ एसाइटस। ये जनाब कितनी चीजें हो गई? 3। ऐसी फीमेल जो कंप्लेंट के साथ आ गई हो कितनी चीजों में? 3 चीजों में। लाइक व्हाट शाबाश। फर्स्ट वन इज प्लूरल इफ्यूजन, नंबर 2 ओवेरियन कैंसर, ठीक है, और साथ में एसाइटस। अब ये एमसीक्यूज आप लोगों को कहाँ से आएगा? ये आप लोग गायनी में भी पेश करेंगे और ये आप लोग मेडिसिन में भी पेश करेंगे, क्योंकि इसमें प्लूरल इफ्यूजन भी है, ये मेडिसिन का पार्ट है, इसमें ओवेरियन कैंसर है, ये गायनी का पार्ट है। लेकिन ऐसी फीमेल जिसमें कितनी चीजें पाई जाए? 3, प्लूरल इफ्यूजन, ओवेरियन कैंसर प्लस एसाइटस। लेकिन प्लूरल इफ्यूजन भी कितनी किस्म की होती है? 2 किस्म की, ट्रांसुडेटिव वर्सेस एक्सुडेटिव। ट्रांसुडेटिव वो है जिसमें प्रोटीन कंटेंट क्या होते हैं? कम होते हैं। इस कंडीशन के अंदर जो प्लूरल इफ्यूजन है दैट विल बी ट्रांसुडेटिव टाइप। ये कौन सा होता है? ट्रांसुडेटिव। इसमें प्रोटीन कंटेंट क्या होगी? वो कम होगी। तो इसका मतलब अगर ये 3 चीजें एक ही फीमेल के अंदर इकट्ठी मिल जाए, एनीवन, व्हाट यू विल सस्पेक्ट इन दैट फीमेल? आंसर इज मेक्स सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं? मेक्स सिंड्रोम, MEIGS, मेक्स सिंड्रोम। तो प्लूरल इफ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ मेक्स सिंड्रोम, ये क्वेश्चन याद रखें। तो मेक्स सिंड्रोम ओनली अफेक्ट फीमेल, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के अंदर होती है, और इसके अंदर टोटली 3 चीजें होती है, प्लूरल इफ्यूजन, ओवेरियन कैंसर एंड एसाइटस। तो दिस इज कॉल्ड मेक्स सिंड्रोम, इसको हम मेक्स सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है जी। तो ये नोट याद रखें एमसीक्यूज के लिए कि भाई अगर रेजोनेंस नोट है सिर्फ, दैट विल बी नॉर्मल लंग टेक्सचर। अगर हाइपर रेजोनेंस हो गया तो फिर ये क्या है? नीमोथोरेक्स है। अगर डलनेस है यू विल सस्पेक्ट निमोनिया, और अगर स्टोनी डलनेस है आंसर विल बी प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। स्टोनी डलनेस, प्लूरल इफ्यूजन। अब लिखे इम्पोर्टेंट चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग। अब कुछ इम्पोर्टेंट चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग हम पढ़ेंगे कि चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग हमारे पास कौन से है एक्सरे के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेके अगर कोस्टोप्रीनिक एंगल ब्लंट है विद या कोस्टोप्रीनिक एंगल ब्लंट आ जाए ना, तो ये प्लूरल क्या है? इफ्यूजन है, ठीक है जी, प्लूरल इफ्यूजन। अगर आ जाए लंग्स और टोटली ब्लैक, जिस तरह भी हमने एक्सरे बताई थी, लंग्स ब्लैक है तो फिर ये क्या है? आंसर इज नीमोथोरेक्स है, नीमोथोरेक्स। ये आप लोगों को पेपर में आएंगे कि एक्सरे फाइंडिंग में ये है, एक्सरे फाइंडिंग में ये है। दूसरी बात लेके गोन फोकस, क्या चीज अगर आ जाए? गोन फोकस आर कैविटेशन, ये दोनों चीजें याद रखें। If chest X-ray of some person shows bone focus or cavitation, it is a tuberculosis। ये क्या होता है? टीबी, ये ट्यूबरकुलोसिस है। तो भाई दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टीबी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी का पेशेंट होता है। टीबी पेशेंट के अंदर बोन फोकस होता है या केविटेशन होती है। अगर फॉर एग्जांपल चेस्ट एक्सरे में आ जाए कंसोलिडेशन, consolidation, that will be pneumonia। consolidation is the hallmark of pneumonia, ये निमोनिया का हॉलमार्क है कंसोलिडेशन। अगर आ जाए स्नो स्टार्मी अपीयरेंस,
अब यहाँ पे क्वेश्चन याद रखें एमसीक्यू के लिए। नोस्टामी अपेयरेंस अगर पेपर में आ जाए किस चीज में, एक्सरे फाइंडिंग में, लेकिन अगर उस बच्चे का एज, इधर देख एज लेस देन 1 ईयर हो, कितने साल से कम हो, 1 साल से कम हो, दैट विल बी, 1 साल से कम क्या, 1 महीने से कम हो, 1 महीने से कम बच्चे को हम क्या कहते हैं, न्यूनेट कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, एनआरडीएस, डिस्ट्रेस सिंड्रोम, फीड में पढ़ा है कि नहीं, इसको हम न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसको हम एनआरडीएस कहते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं, कि अगर नोस्टामी अपेयरेंस एक्सरे फाइंडिंग में आ जाए इन अ बेबी एज लेस देन 1 मंथ, थिंक अबाउट दिस इज द केस ऑफ एनआरडीएस, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, क्लियर है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का केस आ जाए कोई फैक्ट्री वर्कर में, किसमें, फैक्ट्री वर्कर, ये तो एडल्ट होते हैं ना, फैक्ट्री वर्कर या फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं ये हमारे पास एडल्ट लोग होते हैं। और फिर ये भी याद रखना है कि मोस्ट लाइकली कौन से फैक्ट्री के अंदर अगर वो बंदा काम करता है, आंसर इज सिलिका, ये सिलिका जो बनाते हैं या जनाब ग्लास पोट्री बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी फैक्ट्री वर्कर हो उसमें अगर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाए और उसकी एक्सरे पे हमें क्या मिल जाए, नोस्टामी अपेयरेंस, थिंक अबाउट सिलिकोसिस, इसका मतलब क्या है, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस इज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ड्यू टू सिलिका, सिलिका जनाब ये जब ऐसा फैक्ट्री जिसमें सिलिका यूज होता है उसको बार बार एक्सपोज होने से वो लंग में जाती है और वो लंग को बैडली डैमेज कर देती है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ डिजीजेस हम फैक्ट्री में जब कोई भी वर्कर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उसको प्रिवेंटिव मेथड अपनाने बहुत ज़रूरी होते हैं कि वो ग्लव्स पहने, वो मास्क पहने, वो कैप पहने, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं कि वो अगर नोज के जरिए, माउथ के जरिए लंग में चले जाए वो लंग्स को बैडली डैमेज कर देते हैं। तो अगर फैक्ट्री वर्कर में कोई ऐसा केमिकल फैक्ट्री में जनरेट होता गया और वो बॉडी में चलता गया और उसने किसको डैमेज किया, लंग्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ डिजीज को हम क्या कहते हैं, न्यूमोकोनियोसिस, इसको क्या कहते हैं, न्यूमोकोनियोसिस। Pneumoconiosis is a group of diseases which damage the lung due to exposure of